अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो आपको फुल अपना मेडिकल बॉक्स रेडी करना चाहिए। मैं अभी मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम का ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, तो फुल टाइम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल की थ्योरी करवा रहे हैं या नहीं। मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड इट्स अ 2 year मास्टर्स, बट इन यूके इट्स 1 year प्रोग्राम। तो वो कहते हैं कि यहाँ का मेडिकल सर्विस इतना बुरा है कि अगर आप मरने की हालत में होगे तभी वो आपको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज पैरासीटामोल देंगे और पूरे दिन बिठा के रखेंगे। पर आवर वेजेस कितने मिल रहे हैं अभी? आपको कितने मिल रहे हैं? Everybody, welcome to Study Abroad with Piyush, and we are here at Anglia Ruskin University in the Cambridge campus with three amazing friends who are doing their MBA from here. So, yaar, we are going to be trying to keep it a bit informal. थोड़ा high energy रखेंगे हैं MBA वाले, like we need to, but we are going to talk absolute blunt reality of what does it feel like to be doing an MBA in the UK, jobs क्या हैं, खर्चा कितना लग रहा है, what are your big pain points. I want to talk more about pain points than the happy life out here. I don't know if it is happy or not, but we'll find out. So guys, why don't you please introduce yourself and talk a little bit, what's your name, where are you from? And My name is Ripan Gaji, and I am from India, Kolkata, and I am doing MBA right now in Anglia Ruskin University. and what were you doing in India? इंडिया में बैचलर किया है एग्रीकल्चर से, Agriculture. मास्टर भी किया है एग्रीकल्चर Master's, से. yeah. And then Then do I- you have any work experience in India? हाँ, या आई हैव वर्क एक्सपीरियंस विद pharmacy company, Pharmacy company. 1 year experience 1 of year experience. Yes, And then you have come here. yeah. All right. How about you guys? Hello and thank you for welcoming us first of all. And I'm Vansh Motwani. I belong to Jaipur, Rajasthan. All right. And before coming here, I was a physiotherapist in India. I was working as a clinical therapist. Wow. And I thought to get involved in a business. So MBA is a part of me blending clinical role to business role. So that's why I'm here in Anglia Ruskin University. Very good. Very good. Hello, so my name is Saurabh. I'm 21 years old. Before that, coming to here in UK, I was doing bachelor's in English. I've done that from Himachal Pradesh. I am from Himachal Pradesh, and my family owns a small business relating to apples. Ready to apple. Seasonal business. So Right. it's a small business, not so like large. So I planned, like, it was so unreal. Like, I was before 1 year, like I was planning here to come to to get more exposure about the UK. So it was just a dream. Now I'm here, so I feel really very good. Very good. Yeah. So, of course, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है. अभी I'll understand all the reality. I'll tell you one big fact about apples and Cambridge. I don't know if you guys have already discovered the Newton's apple tree in the Trinity College in Cambridge. It's not like the tree. It's a sapling. Cloning. Yeah. It's a It's a cloning. cloning. It's a cloning. Cloning of the sapling that 2018 I guess 2018 में क्लोनिंग किया है. cloning करके यहाँ पर उसका ट्री बनाया apple. So you are in the right city of apple. Yeah. Perfect. So guys, jokes apart, just tell us, why did you already you have seen my videos, right? You showed me red line under the video also to prove that yes, I've seen it. But I've been sharing the job market is very tough in the UK. A lot of students are not getting jobs. Majority of students are not getting jobs. Sponsorship thresholds have gone up. 47,300. 41,700. So why are you here? Why did you pick UK? Because they are 1 year degree, so it is a time saving course, and Yeah. after completing my degree we got 2 years of PSW. Yes, So- September intake. Yes, Yeah, of course. 2 years of PSW. Then I decide to choose. Then I join to any company like अब इधर मेरे को इधर ज़्यादा नहीं रहना है, तो मैं 1 साल और मैं आया इधर मतलब पूरा एक्सप्लोर करने. ठीक है, यूके सब कुछ देखेंगे और 2 साल तक 2 साल जितने भी जॉब एक्सपीरियंस मिला करके मैं बिजनेस शुरू करना. मेरे पापा का बिजनेस है, तो उसको भी बड़ा बनाएंगे. और मैं फार्मिंग का कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मिंग एनिमल. मतलब मैं फार्मिंग मेरे सब कोर्स में था, एग्रीकल्चर के रिलेटेड और फार्मिंग था, तो मैं फार्मिंग रिलेटेड कुछ भी बड़ा So you will probably want to go back, but so you're here to explore. You understand job मिलना बहुत tough होगा. So जितना explore कर सकता हूँ करूँगा, and then you will go back to India. Yeah. And what about you guys? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं क्लिनिकल कर रहा था इंडिया में, बट फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था. मैं भी ग्रो करने के लिए और एक कॉर्पोरेट लाइफ सेटअप में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था MBA. तो और मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड इट्स अ 2 year मास्टर्स, बट इन UK इट्स 1 year प्रोग्राम. सो इट वाज अ इजी डिसीजन फॉर मी टू चूज़ UK. एंड MBA इसलिए करा मैंने क्योंकि कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा इजी है, बिजनेस की काफ़ी नॉलेज मिलती है
और एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज सिटी एजुकेशन सिटी है, एजुकेशनल सिटी और जज बिजनेस स्कूल इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर एंड Yes. नॉट एवरीवन कैन Yeah, अफोर्ड, yeah. सो इसलिए एंग्लियर रस्किन 80,000. यूनिवर्सिटी इज बेटर। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि थियोरेटिकल की थ्योरी करवा रहे हैं या नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, ये फोर्स करते हैं कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अपने आइडियाज़ लाओ, तो इट्स बेटर। अभी फर्स्ट टाइम इस तरीके, बट हाँ एक मेन ये चीज़ मुझे अभी तक रियलाइज़ हुई बट है। जॉब मार्केट, जॉब मार्केट मैं अभी मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम का ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, तो फुल टाइम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। देखा जाए तो जैसे बंदे मैक्सिमम यूज़ करते हैं चैट जीपीटी हाँ कि हम कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं, रिगार्डिंग देखेंगे कि ये मार्केट कैसा है या फिर कहाँ जाना है, यूके ऑस्ट्रेलिया सजेशन मांगते हैं। रियलिटी ऐसी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट हाँ थोड़ा टफ है ढूंढना। बट आप खुद निकलोगे, डोर टू डोर जाओगे तो यस डेफिनेटली यू विल गेट इट। तो आप लोग फुल टाइम के लिए आप बोल रहे हो, फुल टाइम तो बहुत टफ है, पार्ट टाइम में भी हालत टाइट है, बट अभी पार्ट टाइम जॉब तुम में से इन कैम्ब्रिज यहाँ पे थोड़ा टफ है क्योंकि ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड टाउन है, थोड़ा छोटा है, स्मॉलर टाउन, बट इट्स अ हाँ वेरी जॉब मिलता है। इसको मिला है बायरन बर्गर में, Yeah. और मेरे को रॉयल मेल में मिला था, लेकिन एड्रेस प्रूफ करने की वजह से नहीं हुआ। तो कल एक इंटरव्यू है, उसी ऑल्सो में मैंने भी काफ़ी जगह अप्लाई करा है, मेरे भी 2 इंटरव्यूज पेंडिंग है अभी, वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को रॉयल मेल में हो जाता एड्रेस में प्रोविजनल लाइसेंस, Provisional और मेरे NI नंबर में मेरे रूम का नाम, रूम 80 स्टूडियो फ्लैट, और मैं डाला था 80, दोनों जगह गलत हो गया। तो बिकॉज एड्रेस में गलती हो गई, आगे से ध्यान ऐसा नहीं है रखेंगे। कि जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम में मिलेगा। अगर तुम सही रिज्यूमे तो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को नीड तो है ही। हाँ और रिज्यूमे टाइम भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि क्योंकि अभी दिसंबर में है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। क्योंकि क्रिसमस टाइम है, क्रिसमस टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स। फास्ट होती है एकदम। हाँ तो अगर तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, नीड से मैच हो रहा है, तो जॉब मिलना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप कह रहे हो कि आपको ऑलरेडी आप जॉब करना हो गया, बट अभी दोबारा से 2 इंटरव्यू, आपके भी 2 इंटरव्यू, तो पार्ट टाइम जॉब मिल जा रही है। तो मिल जाती है यहाँ पे। पहले ही इंटरव्यू कुछ भी कॉल नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कि मेरा रिज्यूमे गलत हो, कुछ भी हो सकते। उसके बाद जब इंटरव्यू आना शुरू हुआ, प्राइम मार्क में आया, इंटरव्यू देके आया, तो मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक स्टेप क्लियर हो रहा है, एंड देन रॉयल मेल में भी प्रैक्टिकली वही किया था। तो थोड़ा सा इसमें पर आवर वेजेस कितने मिल रहे हैं अभी आपको, कितने मिल रहे हैं? मिनिमम वेज ही मिलता है, 12.21 है। अगर आप अडल्ट हो तो 12.21 है, और कम हो तो आई गेस 10 के अराउंड है। राइट, तो वो मिनिमम वेज ही रहता है। मिनिमम वेज ही मिल रहा अभी है। जो थ्रेशोल्ड्स हैं इन्होंने जो बढ़ा दिया। वो बढ़ा दिया है। 12.21 से 1060 हो गया है, 50 हो गया। 50 कुछ हो गया है। वेजेस थोड़े बढ़ गए हैं अभी, बट हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, यू नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन। वेजेस मिनिमम वही है, 12.21 है। अभी थोड़ा सा हर साल इंक्रीज होता है थोड़ा थोड़ा, तो अभी आई गेस 12.5 या 12.60 हो गया। 12.5 के आसपास। ऐसा है कि अगर तुम केपेबल हो तो जॉब मिलेगी, अगर केपेबल नहीं हो, तुम सोचो कि जॉब चल के है, तो वो नहीं होना। ऐसे नहीं है, you have to work hard for that. Work You have hard. to apply, you have to shortlist jobs, अपनी रिकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं है। बस ऐसा है कि यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी जॉब्स बुरी हैं, बेटर भी काफ़ी मिलती हैं। अभी जैसे ही इज़ वर्किंग इन रेस्टोरेंट, सो लाइक टिप्स वगैरह का बहुत सही सीन है, मस्त। यहाँ पे टर्म्स का बहुत ज़्यादा कि सीन जो है। रेस्टोरेंट का 10% सर्विस चार्ज है, वो सारे स्टाफ में डिवाइड होता है जो उस टाइम पे ड्यूटी पे है। तो वो एक्स्ट्रा वेजेस ही होती है एक तरीके से, तो वो एक अच्छी चीज़ है। फूड वो प्रोवाइड कराते हैं, तो एक तो रेस्टोरेंट में काम करने का फायदा हो गया, फूड मिल जाता है, वो बनाना नहीं पड़ता। प्लस आपके कनेक्शन बनते हैं। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई उसको बाहर का खाना मिल बाहर रहा का है, खाना, पैसे नहीं देने पड़ रहे। पैसे देने It's a पड़ते, good बढ़िया खाना खाओ। ऑल्सो यहाँ पे सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड है, लाइक आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, हाँ। इंडिपेंडेंट फुल। आप जो भी खरीदना आपने, आप खुद जाते हो, खुद खरीदते हो, हर एक चीज़, मतलब पब्लिक कन्वीनियंस यहाँ पे बहुत तो ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब मिल जा रही है, ऐसा नहीं थोड़ी फाइट मार के पार्ट टाइम जॉब मिल जा रही है। थोड़ा तो फंडा बात करते हैं यार फुल टाइम जॉब का, यार वो सबसे बड़ा पेनफुल पॉइंट है। आई वांट माय स्टूडेंट्स कि यार एमबीए कर रहे हो, कोई अच्छे कॉर्पोरेट में, अच्छे बिजनेस में जॉब लगे। फुल टाइम मतलब फुल टाइम मिल रहा है, मतलब हम लोग जब कंप्लीट करेंगे ना तो फुल टाइम मिलेगा, लेकिन वो फुल टाइम में काम कराएगा, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। क्योंकि मेरा एक सीनियर था, और उसका नाम राहुल विश्वास है, वो 2021 में इधर ही आया था पढ़ने। तो वो आया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया, उसके बाद वो 2 साल का डिग्री किया, उसके बाद 2-3 साल से कोऑप किया था, टीम लीडर था शायद। तो उसका एंड मौके में आके उसको बोल रहा है स्पॉन्सरशिप देगा ऐसा करके, और नहीं दिया। फिर अगस्त में चला गया अभी। अगर चला गया हाँ, 5 साल रह के, मतलब ये लोग स्पॉन्सरशिप नहीं देते मतलब इधर यूके में इतना थ्रेशोल्ड कर दिया सैलरी, तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि लोकली किसी को हायर कर ले, किनको उनके स्पॉन्सर करना नहीं पड़ता है, उनका भी कम पैसे दे दो तो भी कम कर लेगा। तो इंटरनेशनली खूब, मतलब आपको बहुत टैलेंटेड होना है, और नहीं तो अब जो आ रहे हैं उनको एक ऐसे स्किल सीख के आना है 2-3,
जो मतलब तुम्हें स्किल दिख के ही काम दे काम में दे देगा। हाँ। डिग्री का मतलब फर्क डिग्री में कोई मतलब ये नहीं है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा मतलब स्किल होंगे तो तुम सही। स्किल से सारा मैटर करेगा। और आप लोग एमबीए कर रहे हैं, एमबीए के साथ में प्लेसमेंट ईयर लिया है? नहीं हमने नहीं प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट रेयर है, बहुत रेयर। मतलब अगर 500 स्टूडेंट्स कर रहे हैं एमबीए तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 को प्लेसमेंट मिलेगा, और प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कराती। और किसी को अगर ज़्यादा टाइम तक रहना है तो उसको लेना चाहिए, फिर 2 साल प्लस 2 साल। मैं वही सोच के आया था कि मैं अभी जा रहा हूँ 1 साल के प्लेसमेंट ले लूँगा, 2 साल प्लस 2 साल हो जाएगा। तो अभी देख रहा हूँ कि जनवरी 27 के अगर बाद को कोई अप्लाई करेगा तो उसको तो PSW 1.5 साल का मिल जाए। तो मैं अगर 1 साल के लिए लूँगा वो भी 6 महीने हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लूँगा। मैं पहले था मैं बट अब जो बच्चे आ रहे हैं वो अगर उनको ज्यादा लंबा रुकना है तो वो प्लेसमेंट ईयर ले सकते हैं। हाँ, बट आप लोग के लिए इतना फायदा ज़्यादा नहीं था। फायदा नहीं है, क्योंकि PSW अब 1.5 साल का हो गया है, तो अगर वो प्लेसमेंट ईयर भी लेते हैं तो 6 महीने का ही फर्क होगा और पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। पैसे ज्यादा कोई लगे सेंस नहीं है उस चीज़ का। तो ज़्यादा नहीं लगता पैसा, 4 बहुत 1,500-2 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा लगे। नहीं हमारे इधर 4000। 4,000 पाउंड। लेकिन 4000 प्लस तुम्हें फीस भी पे करना है, IGSP 142 के इंडियन रुपीस 142 के तो वो भी लग जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का भी खर्चा जाएगा। बस यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो स्कैम है, वो स्कैम टोटली स्कैम है। क्योंकि यहाँ के मतलब मुझे आए हुए यहाँ पे लगभग 2.5 महीने हुए हैं, मैं 18 सितंबर को यहाँ पे आया था। तो मोस्टली जो मेरे रूममेट्स हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ का मेडिकल सर्विस इतना बुरा है कि अगर आप मरने की हालत में होगे तभी वो आपको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज पैरासीटामोल देंगे और पूरे दिन बिठा के रखेंगे। और अपॉइंटमेंट जो है वो जीपी के एक हफ्ते बाद। मैं जीपी को रजिस्टर भी नहीं किया अभी तक। मैं फार्मेसी में मतलब मेरा नॉलेज है फार्मेसी रिलेटेड, तो मैं बहुत सारे दवाई इंडिया से लेके आया। तो कुछ भी होगा तो मैं खुद ट्राई कर लूंगा मेरे ऊपर। मेडिकल सर्विस थोड़ा यहाँ पे स्कैम है, क्योंकि कुछ वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट नीड है, वो अपॉइंटमेंट हफ्ते 10 दिन बाद मिलती है तुम्हें। हफ्ते तब तक ठीक हो जाएगा, तब तक ठीक हो जाएगा। बुखार आएगा। मेरा एक फ्रेंड था वो बांग्लादेशी था, उसका भी बुखार आया था तो हो गया तो नहीं हुआ। मेरे रूम पे दवाई पड़ा था, मैं जाके उसको दिया, वो ठीक हो गया। यही करता। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तब तक वो इंश्योरेंस काम नहीं आ रहा। बाकी ऐसे टच वुड वो तो मैंडेटरी लेने होपफुली जरूरत ना पड़े भाई किसी को भी। बट हाँ मतलब बट दैट्स अ बिग इशू बिकॉज यहाँ पर इंडिया में तो उठ कर कभी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं एंड तुरंत डॉक्टर मिल जाता है। एक में यहाँ पे मेडिकल स्टोर से भी यू कैन बाय समथिंग, राइट? यू हैव टू लाइक वो प्रेस्क्राइब करेंगे तभी आप वहाँ से कुछ खरीद सकते हो, अदरवाइज दे विल इफ यू नीड एनी मेडिसिन कांटेक्ट मी। इट्स अ फार्मेसी, तो दैट इज द इशू। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो आपको फुल अपना मेडिकल बॉक्स रेडी करना चाहिए। मेडिकली अपनी जो भी दवाइयाँ हैं सब चीजें इंडिया से लेके एटलीस्ट 2-3 महीने की आपके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू आता है कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो प्रिस्क्रिप्शन बना के लेके आया, अगर कोई किधर तक इतना मेडिसिन की हुए तो मैं प्रिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट, प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए। बाकी हेल्थ केयर एक बिग प्रॉब्लम है। और कोई ऐसी यहाँ पर आपके हिसाब से कोई एक ऐसी चीज़ जो आप सोच के आए थे एंड यू फाउंड टू बी आर कम्प्लीटली डिफरेंट और लगा यार यहाँ तो बैंड बज जाएगा? मेरे साथ मतलब एक चीज़ ऐसा हुआ कि मैं इंडिया से कोई प्रॉब्लम चाहता नहीं था कि मेरे को यहाँ की कोई इशू हो, तो मैंने अपना अकोमोडेशन ले लिया था, पहले बुक कर लिया था, और मैंने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक स्कैम है, क्योंकि आई एम पेइंग लाइक अ लॉट ऑफ मनी इन द अकोमोडेशन, 900 पाउंड पर मंथ। यहाँ पर बहुत अगर तुम यहाँ पे आके ढूंढते हो तो तुम्हें 400 500 600 में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मेरे को मिल रहा है, मेरे को 425 स्टूडियो रूम सब इंक्लूडिंग, सब इंक्लूडिंग और सिंगल रूम? नहीं डबल रूम स्टूडियो फ्लैट। स्टूडियो फ्लैट। और मेरा जो बोल रहा था ना मेरा सीनियर, वो जगह चला गया, उसके जगह में आ गया। उसके जगह तुम आ गया। वो तो सब ठीक करके दिया, तो मेरे को ऐसे सीनियर भगवान सबको दें। राहुल भाई अगर आपके यहाँ पे कनेक्शन से आपको बहुत इजी हो जाएगा हर एक चीज़, कि आपको जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपको हर एक चीज़। मेरा जो सीनियर था, मेरे को ARU भी चूज करना था, और एक ही रीजन का मैं सिर्फ ARU और 2-3 एक्स्ट्रा चूज़ किया था, और बाकी मेरे जो मतलब एजेंट था वो बहुत बोल रहा था कि बहुत जगह अप्लाई करो, मैं नहीं किया। मेरे को यही आना था। मतलब मेरे को हाटफुशहर में पहले मिल गया, तो उसमें बोल रहे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिर्फ पैसा पे करो, आ जाओ, पैसा दो। और ये लोग बोल रहा है कि मेरा गैप ईयर था, मतलब 2021 में बैचलर हुआ, 23 में मास्टर्स हुआ, उसके बाद 1 साल का गैप था। तो ये लोग बोल रहा है कि इंग्लिश टेस्ट, इधर इनका इंग्लिश टेस्ट हुआ था, वो भी देना पड़ा, और बोल रहा था गैप में तुम क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दो।
तो मैं फिर गया मेरा कंपनी मतलब कि मैं जिस दुकान में काम कर रहा था उधर से डॉक्यूमेंट्स लिया इसके बाद मतलब इधर आने के लिए मेहनत करनी पड़ी हाँ, मगर मैं इधर ही आना था लेकिन जो लोग बोल रहा था मैं सब कर रहा था और मेरा जो एजेंट था वो बोल रहा है इधर इधर सब मिल रहा है फिर वो भाई कोई लोग नहीं एजेंट उधर अगर बुद्धू बना रहा है कुछ भी इधर उधर बहका रहा है तो डोंट लिसन टू देम अपनी आपको research जिधर खुद करो, आपको जिधर जाना ठीक है उधर ही जाना है जितना Absolutely. परेशानी है लीव स्कॉलर हो गया, IDP हो गया, ये सब एडमिट कार्ड हो गया यार एडमिट कार्ड हो गया, ये सब टोटली मैक्सिमम मतलब इजी है अप्लाई करना. आप एजेंट्स के स्कैम में आते हो, वो आप यहाँ से भी फीस ले रहे हैं, आपसे भी कंसल्ट कर रहे हैं. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.